Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are hale and hearty. Welcome to lecture 16 of Industrial Pharmacy. In this lecture we will continue our discussion on the chapter of mixing. In the previous class we were discussing the equipment used for powder mixing, in which we have discussed the tumbling mixers. Today we will learn the other type of mixers used for powder mixing. So let's first start with high-speed granulators or high-speed mixer granulators. In pharmaceutical product manufacture, it is often preferable to use one piece of equipment to carry out more than one function. An example of this is the use of mixer granulators, one design of which is shown here diagrammatically. As the name suggests, it can both mix and granulate a product, thus removing the need to transfer the product between pieces of equipment and thereby producing the opportunity for segregation to occur. The centrally mounted impeller blade at the bottom of the mixer rotates at high speed, throwing the material towards the mixer bowl wall by centrifugal force. The material is then forced upward before dropping back down towards the center of the mixer. The particle movement within the bowl tends to mix the components quickly owing to high shear forces arising from the high velocity and the expansion in bed volume, which allows diffusive mixing. Once the material has been mixed, granulating agent can be added and granules are formed using a slower impeller speed and the action of the side mounted chopper blade. Because of the high speed movement within a mixer granulator, care needs to be taken if the material being mixed fractures easily. This and the problem associated with the over mixing of lubricant means that this type of mixer is not normally used for blending lubricants. फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर में ये डिज़ायरेबल या प्रेफरेबल होता है कि एक पीस ऑफ इक्विपमेंट यूज़ किया जाए जिसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैरी आउट किए जा सकें. और इसी तरह की एक एग्जांपल है जिसमें हम मिक्सर ग्रैनुलेटर्स या हाई स्पीड मिक्सर ग्रैनुलेटर्स यूज़ करते हैं, जिसका डिज़ाइन यहाँ डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा. जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, ये मिक्सर मिक्सिंग और ग्रैनुलेशन दोनों प्रोसेसेस को अचीव कर सकता है. यानी अगर एक इक्विपमेंट के अंदर दोनों प्रोसेसेस अचीव हो रहे हैं तो प्रोडक्ट ट्रांसफ़र जो कि बिटवीन पीसेस इक्विपमेंट में हो रहा है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से सेग्रीगेशन की अपॉर्चुनिटी रिड्यूस हो जाती है. ये मिक्सर सेंट्रली माउंटेड होता है इम्पेलर ब्लेड के ऊपर बॉटम से और रोटेट करता है हाई स्पीड में, और हाई स्पीड रोटेशन की वजह से मटेरियल को थ्रो करता है टूवर्ड्स दी बोल वॉल सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के थ्रू या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू. मटेरियल जब थ्रो होता है टूवर्ड्स दी बोल वॉल तो मटेरियल फोर्स करता है अपवर्ड्स बिफोर ड्रॉपिंग डाउन बैक हेयर इन द सेंटर पीस. पार्टिकल मूवमेंट जो विद इन द बोल हो रही है वो कंपोनेंट्स को मिक्स करती है क्विकली हाई शेयर फोर्सेस की वजह से, जो एक्चुअली अराइज होती हैं हाई वेलोसिटी की वजह से, और एक्सपेंशन होता है बेड वॉल्यूम में, जिसकी वजह से डिफ्यूजिव मिक्सिंग इफ़ेक्टिव होती है. जब मटेरियल मिक्स हो जाता है तो इस एरिया से ग्रैनुलेटिंग फ्लूइड ऐड किया जाता है. ग्रैन्यूल्स फॉर्म होते हैं स्लो इम्पेलर स्पीड की वजह से, और ये जो चॉपर है साइड वॉल पे माउंटेड है, ये ग्रैन्यूल्स को ब्रेक करता है या एग्रीगेट्स को ब्रेक करता है. हाई स्पीड मूवमेंट मिक्सर के अंदर या मिक्सर ग्रैनुलेटर के अंदर होने की वजह से
केयर ज़रूरी होती है ताकि मटेरियल जो इजीली फ्रैक्चर होता है वो फ्रैक्चर ना हो जाए। इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं ओवर मिक्सिंग की, ल्यूब्रिकेंट्स के साथ, जिसकी वजह से ये मिक्सर ल्यूब्रिकेंट्स की मिक्सिंग के लिए ग्रैनुलेशन में यूज़ नहीं किया जाता। The next type of mixer that we are going to discuss today are agitator mixers. This type of mixers depends on the motion of a blade or paddle through the product, and hence the main mixing mechanism is convection. Examples include the ribbon mixer and the planetary mixer. In ribbon mixer, mixing is achieved by the rotation of helical blades in a hemispherical trough. Dead spots are difficult to eliminate in this type of mixer, and the shearing action caused by the movement of the blades may be insufficient to break up drug aggregates. The mixer does, however, mix poorly flowing materials and is less likely to cause segregation than a tumbling mixer. This is the planetary mixer. Similar designs are used for both powder and semi-solid mixing. The mixing bowl is shown in the lower position for filling and emptying. The bowl is raised up or to the mixing blade for the mixing process. The mixing blade is set off center and is carried on a rotating arm. It therefore travels round the circumference of the mixing bowl while simultaneously rotating around its own axis. This is therefore a double rotation similar to that of a spinning planet around the sun. Hence the name, and is designed so that the blade covers all the volume of the mixer. एजिटेटर मिक्सर्स डिपेंड करते हैं ब्लेड और पैडल के मोशन के ऊपर जो कि प्रोडक्ट में से हो रहा होता है। इस वजह से इसका मेन मिक्सिंग मैकेनिज्म कन्वेक्शन है। एजिटेटर मिक्सर्स की दो एग्जांपल्स हैं, रिबन मिक्सर्स और प्लैनेटरी मिक्सर्स। रिबन मिक्सर्स में मिक्सिंग अचीव की जाती है बाय द रोटेशन ऑफ दीज हेलिकल ब्लेड्स, जो कि एक हेमिस्फेरिकल ट्रफ के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। डेड स्पॉट्स को एलिमिनेट करना इसमें डिफ़िकल्ट होता है इस टाइप के मिक्सर के अंदर, और शेयरिंग एक्शन ब्लेड की मूवमेंट कॉज करता है, जो कि इनसफिशिएंट होती है ड्रग एग्रीगेट्स को ब्रेक करने के लिए। लेकिन ये मिक्सर बेनिफिशियल है पुअरली फ्लोइंग मटेरियल्स की मिक्सिंग के लिए, और इसके अंदर सेग्रीगेशन के चांसेस एज़ कम्पेयर टू टम्बलिंग मिक्सर्स कम होते हैं। प्लैनेटरी मिक्सर्स का ये जो डिज़ाइन आपके सामने है, इसको हम पाउडर और सेमी सॉलिड दोनों की मिक्सिंग के लिए यूज़ करते हैं। मिक्सिंग बोल लोअर पोजीशन पे फिटेड होता है, जो कि फिलिंग और एम्प्टिंग दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ये बोल रेस किया जाता है टूवर्ड्स दिस मिक्सिंग ब्लेड फॉर मिक्सिंग प्रोसेस। मिक्सिंग ब्लेड सेंटर में अटैच होता है और एक रोटेटिंग आर्म के साथ कैरी कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये ट्रैवल करता है अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द मिक्सिंग बोल, जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, जबकि साइमल्टेनियसली रोटेट करता है अपने ही एक्सेस के ऊपर, यानी ये ट्रैवल भी कर रहा है और साइमल्टेनियसली अपने ही एक्सेस पे रोटेट भी कर रहा है। इसी वजह से डबल रोटेशन अचीव होती है, जो कि सिमिलर है स्पिनिंग प्लैनेट के अराउंड द सन, लाइक द अर्थ इज़ रोटेटिंग itself and it is rotating around the sun as well। इसी वजह से इसका नाम प्लैनेटरी मिक्सर है, और इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि इसके ब्लेड कवर कर सकें ओवरऑल वॉल्यूम मिक्सर का। Mobile liquids
Mobile liquids with a low viscosity are easily mixed with each other. Similarly, solid particles are readily suspended in mobile liquids, although the particles are likely to settle rapidly when mixing is discontinued. Viscous liquids are more difficult to stir and mix, but they reduce the sedimentation rate of suspended particles. मोबाइल लिक्विड्स जिनकी विस्कोसिटी कम होती है वो इजीली मिक्स हो सकते हैं. इसी तरह से सॉलिड पार्टिकल्स रेडिली सस्पेंड हो सकते हैं मोबाइल लिक्विड्स में, लेकिन पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं रैपिडली अगर मिक्सिंग को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए. विस्कस लिक्विड्स ज़्यादा डिफिकल्ट है स्टिरिंग और मिक्स के लिए, लेकिन वो सेडिमेंटेशन रेट के चांसेस को सस्पेंडेड पार्टिकल्स में कम कर देते हैं. There are a number of mixers which are used for miscible liquids and suspensions. We'll discuss them in detail. Let's first learn about the propeller mixers. A common arrangement for medium scale fluid mixing is a propeller type stirrer, which is often used clamped to the edge of a vessel. A propeller has angled blades which cause the circulation of the fluid in both an axial and a radial direction. An off-center mounting discourages the formation of a vortex, which may form when the stirrer is mounted centrally. A vortex forms when the centrifugal force imparted to the liquid by the propeller blades causes it to be back up around the sides of the vessel and form a depression around the shaft. As the speed of rotation is increased, air may be sucked into the fluid due to the formation of a vortex, and this can cause frothing and possible oxidation. Another method of suppressing vortex is to fit vertical baffles into the vessel. These divert the rotating fluid from its circular path into the center of the vessel where the vortex would otherwise form. The ratio of the diameter of a propeller stirrer to the diameter of the vessel is commonly 1:10 to 1:20, and it typically operates at a speed of 1 to 20 revolutions per second. The propeller stirrer depends for its action on a satisfactory axial and radial flow pattern, which will not occur if the fluid is too viscous. There must be a fast flow of fluid towards the propeller, which can occur if the fluid is mobile. एक कॉमन अरेंजमेंट मीडियम स्केल के ऊपर फ्लूइड मिक्सिंग की प्रोपेलर टाइप स्टिरर है, जो कि ऑफन यूज़ होता है क्लैम्प्स के साथ, जो एज ऑफ वेसल के ऊपर क्लैम्प्ड होते हैं. प्रोपेलर मिक्सर्स में एंगल ब्लेड्स होते हैं जो सर्कुलेशन कॉज करते हैं फ्लूइड की एक्सियल और रेडियल डायरेक्शन के अंदर. ऑफ सेंटर माउंटिंग डिस्करेज करती है वॉर्टेक्स फॉर्मेशन को, जो कि हो सकती है जब स्टिरर सेंट्रली माउंटेड होता है. वॉर्टेक्स फॉर्म होता है जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इम्पार्ट होती है लिक्विड के ऊपर प्रोपेलर ब्लेड्स की वजह से, जो एक्चुअली ये लिक्विड को बैकअप करवाती है अराउंड द साइड्स ऑफ द वेसल, और एक डिप्रेशन कॉज होता है अराउंड द शाफ्ट हेयर इन दिस रीजन. जैसे जैसे स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज होती है, एयर सक होती है इस फ्लूइड में इस शाफ्ट फॉर्मेशन या वॉर्टेक्स की वजह से, जो कि फ्रॉथिंग या पॉसिबल ऑक्सीडेशन कॉज करवा सकती है. वॉर्टेक्स को सप्रेस करने के लिए वर्टिकल बैफल्स ऐड किए जाते हैं वेसल के अंदर, जो डाइवर्ट करते हैं रोटेटिंग फ्लूइड को सेंटर पाथ से सर्कुलर पाथ से सेंटर ऑफ द वेसल की तरफ, जहाँ पर वॉर्टेक्स फॉर्म हो रहा होता है. रेशियो डायमीटर का प्रोपेलर स्टिरर के टू द डायमीटर ऑफ वेसल कॉमनली 1:10 होता है या 1:20 तक होता है, और ये टिपिकली ऑपरेट करते हैं 1 to 20 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड की स्पीड के ऊपर. प्रोपेलर स्टिरर
डिपेंड करते हैं अपने एक्शन के लिए एक्सियल और रेडियल फ्लो पैटर्न के ऊपर, जो मोस्टली विस्कस फ्लूइड्स के अंदर अकर नहीं होता। फास्ट फ्लो फ्लूइड्स में टूवर्ड्स द प्रोपेलर ये रेडियल और एक्सियल फ्लो अकर हो सकता है अगर फ्लूइड मोबाइल है। डिफरेंट टाइप के प्रोपेलर्स हम यूज़ करते हैं फॉर मिक्सिंग, लाइक इम्पेलर ऑप्शंस हमारे पास रेडियल फ्लो आरसीआई है, रेडियल फ्लो आरएफबीटी है, एक्सियल फ्लो प्रोपेलर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के एक्सियल फ्लो प्रोपेलर्स होते हैं। The next type of mixers which are used for liquid or semi-solid mixing, liquid mixing or suspension mixing are turbine mixers. A turbine mixer may be used for viscous fluids and a typical construction is shown over here in this figure. The impeller has 4 flat blades surrounded by a perforated inner and outer diffusive rings. The rotating impeller draws the liquid into the mixer head and forces the liquid through the perforations with considerable radial velocity sufficient to overcome the viscous drag of the bulk of the fluid. One drawback is the absence of an axial component, but a different head with the perforation pointing to upwards can be fitted if this is desired. As the liquid is forced through the small orifice of the diffuser rings, at high velocity, large shear forces are produced. When mixing immiscible liquids, if the orifice are sufficiently small and velocity sufficiently high, the shear forces produced enable the generation of droplets of the dispersed phase, which are small enough to produce stable dispersions, like water in oil or oil in water dispersions. Turbine mixers of this type or homogenizers are therefore often fitted to the vessel used for the large scale production of emulsions and creams. Turbine type mixers will not cope with liquids of very high viscosity because the materials will not be drawn into the mixer head. These liquids are best treated as semi-solids and handled in the same equipment as used for such materials. टर्बाइन मिक्सर्स को हम यूज़ कर सकते हैं विस्कस फ्लूइड्स की मिक्सिंग के लिए, और ये एक टिपिकल कंस्ट्रक्शन है जो इस डायग्राम के अंदर शोन है। इम्पेलर के 4 फ्लैट ब्लेड्स होते हैं जो कि परफोरेटेड इनर और आउटर डिफ्यूज़र रिंग्स के साथ सराउंड होते हैं। रोटेटिंग इम्पेलर लिक्विड को ड्रॉ करता है मिक्सर हेड में और फोर्स करता है लिक्विड को परफोरेशन से कंसिडरेबल रेडियल वेलोसिटी के साथ इतना ज़्यादा कि वो ओवरकम कर सके विस्कस ड्रैग को बल्क ऑफ द फ्लूइड में। इसका ड्रॉबैक एक्सियल कंपोनेंट की एब्सेंस का ये है कि एक्सियल कंपोनेंट की एब्सेंस इसका एक ड्रॉबैक है, लेकिन डिफरेंट हेड परफोरेशंस के साथ ऐड किए जा सकते हैं अगर डिज़ायरेबल हो तो। लिक्विड जैसे ही फोर्स होता है स्मॉल ऑरिफिस से डिफ्यूज़र रिंग्स के अंदर हाई वेलोसिटी में से लार्ज शेयर फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं। मिक्सिंग इमिसिबल लिक्विड्स की जब हो रही होती है टर्बाइन मिक्सर से, तो ऑरिफिस अगर सफिशेंटली स्मॉल है और वेलोसिटी सफिशेंटली हाई है तो शेयर फोर्सेस प्रोड्यूस करती हैं जनरेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स फेज में, जो स्मॉल इनफ होते हैं कि वो स्टेबल डिस्पर्जन्स को प्रोड्यूस कर सकें। टर्बाइन मिक्सर्स या होमोजेनाइजर्स फिट किए जाते हैं वेसल के ऊपर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ इमल्जन्स और क्रीम्स के लिए। टर्बाइन टाइप मिक्सर्स हाई वेलोसिटी लिक्विड्स को कोप नहीं करते क्योंकि मटेरियल्स ड्रॉ नहीं होता मिक्सर हेड में। ये लिक्विड्स बेस्ट ट्रीट किए जाते हैं एज सेमी सॉलिड्स और इनको हैंडल किया जाता है उसी इक्विपमेंट के अंदर जिस इक्विपमेंट में सेमी सॉलिड्स को मिक्स किया जाता है।
एक ऑल्टरनेटिव मिक्सिंग फ्लूइड की या बैचेस की वेसल्स के अंदर इनलाइन मिक्सर्स है, जहाँ पर मोबाइल मिसिबल कंपोनेंट्स फेड किए जाते हैं एक इनलाइन के अंदर मिक्सर में, जो एक्चुअली इसलिए डिज़ाइन होती है कि वो टर्बुलेंस कॉज करे फ्लोइंग फ्लूइड स्ट्रीम के अंदर। कंटिन्यूस मिक्सिंग प्रोसेस इनलाइन मिक्सर्स के साथ पॉसिबल है और वो तमाम डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करता है। The last topic of this chapter is mixing of semi-solids. For the mixing of semi-solids, planetary mixers are used. We have discussed planetary mixers just now in the mixing of liquids as well. This type of in the mixing of semi-solids as well, this type of mixers is commonly found in the domestic kitchen. For example, Kenwood type mixers and large machines which operate on the same principles are used in pharmaceutical industry as well. When used for the mixing of semi-solids, they are designed so that there is only a small clearance between the vessel and the pedal in order to ensure sufficient shear. However, scraping down of the bowl is usually necessary several times during a run to mix the contents well, because some materials are forced to the top of the bowl. Double planetary mixers that move materials by rotating two identical blades, either rectangular or helical, on their own axis as they orbit on a common axis, are often used for mixing highly viscous semi-solid materials. As the blades continuously advance along the periphery of the mixer vessel, they remove materials from the wall and transport it towards the interior. ये इस टाइप का मिक्सर हम कॉमनली किचन में यूज़ करते हैं, लाइक कैनवुड टाइप मिक्सर्स, और इस तरह की लार्ज मशीन्स जो इसी मैकेनिज़्म के ऊपर ऑपरेट करती हैं, उसे सेमी सॉलिड की मिक्सिंग के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। जब ये मिक्सर सेमी सॉलिड की मिक्सिंग के लिए यूज़ होता है तो ये इस तरह से डिज़ाइन होता है कि सिर्फ स्मॉल क्लियरेंस प्रोड्यूस कर सके वेसल और पेडल के बीच में, ताकि सफिशिएंट शेयर फोर्सेस जनरेट हो सकें। स्क्रैपिंग डाउन बोल में नेसेसरी होती है और सेवरल टाइम नेसेसरी होती है ड्यूरिंग अ रन, ताकि कंटेंट्स इजीली और सफिशिएंटली मिक्स हो जाएं और वेल मिक्स हों, क्योंकि कुछ मटेरियल्स टॉप ऑफ द बोल में फोर्स रहते हैं, इसलिए स्क्रैप डाउन करना उनको ज़रूरी होता है। डबल प्लानिटरी मिक्सर्स इस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं जो मूव करते हैं मटेरियल को दो आइडेंटिकल ब्लेड की रोटेशन के साथ। ये आइडेंटिकल ब्लेड्स इधर रेक्टेंगुलर होते हैं या हेलिकल होते हैं और ये अपने ही एक्सिस के अराउंड मूव करते हैं ऑर्बिट में और ऑन अ कॉमन एक्सिस, और ये सफिशिएंटली मिक्स करवाते हैं हाईली विस्कस सेमी सॉलिड मटेरियल्स को। Sigma blade mixers are also used for semi-solid mixing. This robust mixer will deal with the stiff paste and ointments and depends for its action on the close intermeshing of the two blades, which resembles the Greek letter sigma in shape, hence the name. The clearance between the blades and the mixing trough is kept small by the design shown over here. एक रोबस्ट मिक्सर है जो स्टिफ पेस्ट की और ऑइंटमेंट्स की मिक्सिंग के लिए यूज़ होता है। इसका एक्शन डिपेंड करता है इंटरमेशिंग के ऊपर, दो ब्लेड्स की इंटरमेशन के ऊपर, जो एक्चुअली रिजेंबल करते हैं सिग्मा को या ग्रीक लेटर सिग्मा को। इसमें क्लियरेंस ब्लेड की और मिक्सिंग की स्मॉल रखी जाती है, जैसे कि इस डिज़ाइन के अंदर शोन है। That is the end of this chapter and this lecture as well. Thank you for patiently listening to this lecture. If you have any questions, you can post it on HULMS. Take care of yourself and everyone around you. Allah Hafiz.